Hello everyone, welcome to today's discussion on LPG reforms. Liberalization, privatization and globalization is the full form of LPG. भारत की अर्थव्यवस्था में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ और समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा, उनका क्या योगदान रहा। सो let us start Manmohan Singh's contribution to India economy, LPG reforms. Dr. Manmohan Singh, who was the finance minister in 1991, managed to pull India back from the brink of bankruptcy. In today, we reflect on one of his significant contributions in economic reforms, LPG. पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को दिवालियापन के कगार से बाहर निकाला। आज हम आर्थिक सुधारों में उनके द्वारा किए गए योगदान पर विचार करने जा रहे हैं, खासकर एलपीजी के बारे में। अब आपको मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर एलपीजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या आवश्यकता है। तो आप सबसे पहले ये जान लें कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के सिलेबस से कैसे रिलेट करता है, सब्जेक्ट इकोनॉमी से बिलोंग करता है, एंड इट्स रिलेवेंस मेंस and prelims both, such as the economic crisis of 1990s and the subsequent economic reforms in 1991 were defining movements in India's economic development. The UPSC has asked direct questions on the economic liberalization of 1991 in the prelims examination. Also, for a better understanding of general studies paper third, one needs to study the economic reforms of 1991. Therefore, knowing about the LPG reforms is important for your preparation. The world paid tribute to Dr. Manmohan Singh, who died on Thursday, means 26th December, at the age of 92 years. He is the chief architect of the economic reforms, particularly the LPG, means liberalization, privatization and globalization policy in 1990, which transformed India's economic trajectory. The Union government had declared a 7-day mourning period for Singh and had cancelled all government programs scheduled for Friday. जैसा कि आप सब लोग अवगत हो चुके हैं कि पूरी दुनिया में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और उनका हाल ही में अभी निधन हुआ। वे 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों, खासकर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने भारत की आर्थिक दिशा को बदल दिया। केंद्र सरकार ने इसके लिए भी हाल ही में 7 दिन के अवकाश की घोषणा की है, शोक की घोषणा की है और इस दौरान जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उनको रद्द कर दिया गया है। When Dr. Manmohan Singh became finance minister in 1991, India was on the verge of economic collapse, with foreign exchange reserve sufficient to cover only a few weeks of essential imports. Faced with one of the most serious economic challenges in independent India, Singh decided to introduce economic reforms in 1991, focused on liberalization, privatization, and opening of India's economy, aligned with
मार्केट ड्राइवन प्रिंसिपल्स। अर्थात 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने भारत के आर्थिक पतन की, उस समय देश आर्थिक पतन की कगार पर था। फॉरेन करेंसी स्टोरेज केवल कुछ वीक के लिए, कुछ सप्ताह के लिए जरूरी आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त था। स्वतंत्र भारत में सबसे गंभीर आर्थिक चुनौतियों में से एक का सामना करते हुए उन्होंने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू करने का डिसीजन लिया और जो उदारीकरण, निजीकरण और बाजार संचालित प्रिंसिपल के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को खोलने पर केंद्रित था। Singh's reforms in 1991 sought to liberalize and end the license raj through industrial policy reforms. These helped India navigate a critical balance of payments crisis when the country had foreign exchange reserves sufficient for just 2 weeks of imports against the normal safe level of 3 months of import cover at that time. मीन्स 1991 में उन्होंने उनके सुधारों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स के माध्यम से उदारीकरण मीन्स लिबरलाइजेशन और लाइसेंस राज को समाप्त करने का प्रयास किया। इन सुधारों ने भारत को एक महत्वपूर्ण भुगतान संतुलन संकट से निपटने में मदद की, जब देश के पास उस समय 3 महीने के आयात कवर के सामान्य सुरक्षित स्तर के मुकाबले केवल 2 सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार था। The new industrial policy resolution abolished most trade license and provided freedom to enterprises, opening up the country to foreign direct investment, thereby substantially deregulating the industrial sector। अर्थात न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रस्ताव ने अधिकांश व्यापार लाइसेंसों को समाप्त कर दिया तथा उद्यमों को स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खुल गया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र का काफी हद तक विनियमन समाप्त हो गया। सो यू नो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आर्थिक सुधारों का उद्देश्य यही था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो सबसे पहले देखिए वन बाय वन इसके कॉन्सेप्ट को समझे। लिबरलाइजेशन डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स टू कंसोलिडेशन ऑफ द इकोनॉमी among various other economics in the world. But privatization shift of economic control from public entities to private hands. अब हम डिटेल में लिबरलाइजेशन को समझेंगे। लिबरलाइजेशन मीन्स द रिफॉर्म एंडेड द excessive regulatory framework known as the license permit draw system. The new industrial policy abolished industrial licensing for all projects bearing a select few strategic industries, allowed the government to disinvest its shareholding in the public sector, and amended the Monopolies and Restrictive Trade Practices means MRTP Act to allow for the setting up, expansion and merger of businesses without prior approval. These measures were followed up with liberalization of the banking sector and capital market. In line with the recommendation of the Narasimhan Committee report of 1991, the government proposed to cut down the SLR. SLR means statutory liquidity ratio from 38.5% to from 38.5% to 25% over a 3-year period, and cash reserve ratio from 25% to 10%
over a period of 4 years. Bank branch licensing policy and setting of interest rates by lenders were also liberalized. These measures ensured that the financial sector had a capacity to fund the economic expansion being initiated by liberal industrial and trade policy. अर्थात उदारीकरण ने लाइसेंस परमिट राज सिस्टम के रूप में ज्ञात अत्यधिक विनियामक ढांचे को समाप्त कर दिया। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने कुछ चुनिंदा रणनीतिक उद्योगों को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने की अनुमति दी और बिना पूर्व अनुमोदन के व्यवसायों की स्थापना, विस्तार और विलय की अनुमति देने के लिए एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTP एक्ट में संशोधन किया और इन उपायों का पालन बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजारों के उदारीकरण के साथ किया गया। 1991 की नरसिम्हम कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप गवर्नमेंट ने 3 साल की अवधि में SLR, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, को 38.5% से घटाकर 25% और 4 साल की अवधि में नगद आरक्षित अनुपात को 25% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव रखा। बैंक शाखा लाइसेंसिंग नीति और उधारदाताओं द्वारा ब्याज दरों की स्थापना को भी उदार बनाया गया, मींस लिबरल बनाया गया। इन उपायों से यह सुनिश्चित हुआ कि फाइनेंशियल सेक्टर में उदार औद्योगिक और व्यापार नीति द्वारा शुरू किए जा रहे आर्थिक विस्तार को वित्त पोषित करने की क्षमता है। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। Privatization led to the transfer of businesses from the control of the state to the private sector. The new policy reduced the number of areas reserved only for public sector companies from 17 to 8. These structural reforms led to no enterprises coming into the picture both in the industrial and services sectors, growth gaining momentum, and a large number of Indian exciting poverty. With these policy reforms, nearly 80% of the industry was taken out of the industrial licensing framework, and the monopolies and restrictive trade practices Act was repealed to eliminate the need for prior approval for capacity expansion by companies. अर्थात निजीकरण ने व्यवसायों को राज्य के नियंत्रण से प्राइवेट सेक्टर मींस निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। न्यू पॉलिसी ने केवल पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या को 17 से घटाकर 8 कर दी और इन संरचनात्मक सुधारों के कारण औद्योगिक और सर्विस सेक्टर दोनों में नए उद्यम दोनों सामने आए, विकास को गति मिली और बड़ी संख्या में भारतीय गरीबी से बाहर निकले। इन्हीं नीतिगत सुधारों के साथ लगभग 80% उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस ढांचे से बाहर कर दिया गया और कंपनियों द्वारा क्षमता विस्तार के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन was to integrate the Indian economy with the world economy by reducing trade barriers and facilitating the free flow of capital, technology and labor. In 1991, reforms reduced the trade import duties. Automatic permission was allowed to be given for foreign technology agreements in high priority industries and disallowed
the permission for hearing of foreign technicians and foreign testing of indigenously developed technologies. The Indian government allowed direct foreign investment of up to 51% foreign equity and removed bottlenecks to facilitate foreign technology agreement in higher priority industries. As a finance minister in 1991, I ended my budget speech by quoting Victor Hugo, "No power on earth can no power on earth can stop an idea whose time has come." 30 years later, as a nation, we must remember Robert Frost's poem, "But I am promises to keep and meals to go before I sleep." Dr. Singh said on the 25th anniversary of the LPG reforms. अर्थात वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करके और पूंजी प्रौद्योगिकी और श्रम के मुक्त प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना था। और 1991 के सुधार ने व्यापार आयात शुल्क को कम कर दिया। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी प्रौद्योगिकियों समझौते के लिए स्वचालित अनुमति दी गई और विदेशी तकनीशियों को काम पर रखने और स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों के विदेशी परीक्षण की अनुमति नहीं दी। भारत सरकार ने 51% तक विदेशी इक्विटी के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी और उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते को सुविधाजनक बनाने के लिए बाधाओं को दूर किया। और इसीलिए 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में विक्टर ह्यूगो का उद्धृत करते हुए उन्होंने अपने बजट भाषण को समाप्त किया। क्या कहा कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। ये उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह का उनके लिए था। और 30 साल बाद एक नेशन के रूप में हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता याद रखनी चाहिए, लेकिन मुझे वादे निभाने हैं और सोने से पहले मीलों चलना है। डॉक्टर सिंह ने एलपीजी सुधारों की 25वीं वर्षगांठ पर ये कहा था। तो ये देखिए कितनी बात थी। और नेचुरल है, देखिए यदि हम इंटीग्रेट मार्केट को ना किए होते तो आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेज गति से आगे ना बढ़ती और आज जो है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ना आते। तो देखिए उनका जो है एलपीजी के रूप में काफी बड़ा योगदान था। अब हम बात करेंगे उस समय के आर्थिक क्राइसिस क्या था, उसकी स्टोरी क्या थी। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1990 अर्थात 1990 का आर्थिक संकट। A sharp jump in oil prices in August 1990 led to an acute economic crisis, turning the balance of payment situation unmanageable, depleting foreign exchange reserves along with massive capital outflows and pushing India closer to a possibility of default। दरअसल क्या था कि अगस्त 1990 में तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण तीव्र आर्थिक संकट पैदा हो गया, जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति असहनीय हो गई। फॉरेन करेंसी स्टोरेज में कमी आई, साथ ही बड़े पैमाने पर पूंजी का बहिर्वाह हुआ और भारत डिफॉल्ट की संभावना के करीब पहुंच गया। These particular circumstances led to the government mounting the economic defense by devaluing the rupee on July 1st, 1991 and the Reserve Bank of India transferring over 46 tons of gold from its reserves to the Bank of England for borrowing forex to manage immediate liquidity problems resulting from the balance of payment problem। आप समझिए कि इन विचित्र सिचुएशन के कारण गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 1991 को रुपए का अवमूल्यन करके आर्थिक बचाव को बढ़ाया और आरबीआई ने भुगतान संतुलन की समस्या से उत्पन्न तत्काल तरलता समस्याओं का प्रबंधन करने के लिए विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए अपने भंडार से 46 टन से अधिक सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को हस्तांतरित कर दिया।
It was for the first time that there was the prospect of default on external commitments as the foreign currency reserves had fallen to a man $1 billion by mid 1991। यह फर्स्ट टाइम था कि बाह्य प्रतिबद्धताओं पर चूक की संभावना थी, क्योंकि 1991 के मध्य तक विदेशी मुद्रा भंडार मात्र $1 बिलियन तक गिर गया था। This crisis compelled the government to create a new framework in which the fundamental principle would be that competition is key to improving efficiency। अर्थात इस संकट ने सरकार को एक नया ढांचा बनाने के लिए बाध्य किया, जिसका मूलभूत सिद्धांत यह होगा कि दक्षता में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखिए, हम बात करेंगे कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म मींस डॉक्टर मनमोहन सिंह की जर्नी कैसे रही। तो सबसे पहले आप यहां पर देखें कि ये तो आप अभी जानते हैं कि हाल ही में उनका निधन हुआ है। उनका जन्म जो है गाह, जो कि पंजाब प्रांत में है, पहले पाकिस्तान में था, और 1972 से इसकी जर्नी की स्टार्ट है। तो 1962 began his career as an economist with the government of India। भारत सरकार के अर्थशास्त्री के रूप में यहां से काम करने की काम की शुरुआत की। In 1982 appointed as a governor of Reserve Bank of India and modernizing India's monetary policies। अर्थात ये जो है उस 1982 में आरबीआई गवर्नर बनाए गए। और नेक्स्ट इन 1991 appointed as a finance minister, introduces economic reforms to liberalize the Indian economy। Next in 1992 devalues the rupee and dismantles the license raj, attracting foreign investment। In 1993 introduces mutual fund industry to private and joint sector participation and modernizing banking। In 2004 becomes India's prime minister। In 2005 launches Manrega, providing employment opportunities in rural areas and implementation of RTI Act। In 2008 played a pivotal role in the India-US Civil Nuclear Agreement। NSG grants India a waiver allowing it to engage in nuclear trade। In 2009 reintroduced agricultural reforms including ₹65,000 crore loan waivers for farmers। And in 2014 its tenure as a prime minister, leaving a legacy of economic growth and reforms। मतलब सोचिए कि 2014 में सत्ता के जाने पूर्व, मतलब जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की लेगेसी को छोड़ के गए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।